سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کے عوام کو ریلیف پہنچانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ سرکاری ریٹس میں 2 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگی فروخت، جبکہ ادرک 750، لہسن 470، پیاز 150، ٹماٹر 130 روپے کلو تک فروخت جاری ہے۔ سرکاری ریٹس میں ایک پھل مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ سیب 450 روپے کلو، کیلا 390 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جانیں گے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا آج کے کیا بھاؤتاؤ ہیں؟ جی بالکل، آج جو انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نقلہ میں جاری کیا گیا اس میں بظاہر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں استحکام رکھا گیا ہے۔ صرف 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، لیکن مارکیٹ کی صورتحال جو ہے اس کی بالکل برعکس ہے، کیونکہ مارکیٹ میں سرکاری نقلاموں کے برعکس جو ہے مہنگے داموں سبزیاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ پیاز 125 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے سرکاری ریٹس میں، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری پیاز جو ہے وہ 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 105 روپے سرکاری ریٹس میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 130 سے 140 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن 360 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 470 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک جو ہے 645 روپے سرکاری ریٹس میں مقرر کیا گیا، لیکن جو ادرک کی مارکیٹ میں فروخت ہے وہ 750 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اس طرح جو دیگر موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میتھی 4 روپے مہنگی کر کے 64 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں میتھی کی فروخت جو ہے وہ 64 کے برعکس 80 روپے فی کلو تک کی جا رہی۔ بند گوبھی 1 روپے اضافے کے بعد 36 روپے مقرر کی گئی، لیکن 36 کے برعکس بند گوبھی 50 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی۔ اسی طرح جو آلو ہے وہ 50 روپے سرکاری ریٹس میں قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا جو آلو کا چھلکا ہے وہ 70 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ بیگن 53 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 70 روپے فی کلو تک۔ کریلے 115 روپے مقرر کیے گئے، لیکن فروخت 140 روپے فی کلو تک کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بھنڈی 220 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں بھنڈی 280 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 115 روپے مقرر کی گئی، لیکن 115 کے برعکس 130 سے 140 روپے شہریوں کو شملہ مرچ کی فروخت کی جا رہی ہے۔ عربی 150 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 180 سے 200 روپے فی کلو تک عربی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 150 روپے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن مٹر کی فروخت جو ہے 180 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح گاجر 85 روپے آج مقرر کی گئی ہے سرکاری ریٹس میں، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی صورتحال اس سے بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ پھل جو ہیں وہ مسلسل مہنگے ہو رہے ہیں۔ رمضان مبارک سے پہلے جن پھلوں کی قیمتوں میں جو استحکام تھا، اب وہ قیمتیں مارکیٹ میں مسلسل عدم استحکام کا شکار ہیں۔ آج سیب کالا کلو 325 روپے مقرر کیا گیا ہے، درجہ اول کی قیمت ہے سرکاری ریٹس میں، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا سیب جو ہے وہ 450 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح درجہ اول کیلے کی قیمت 200 روپے درجن مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 200 کے برعکس 390 سے 400 روپے فی درجن تک کیلا فروخت کیا جا رہا ہے۔ تربوز جو ہے 78 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 120 روپے فی کلو تک۔ کھجور ایرانی 480 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں جو کھجور ہے وہ 580 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ خربوزہ 160 روپے مقرر کیا گیا، 5 روپے کا آج اضافہ کیا گیا خربوزے کی قیمت میں۔ مارکیٹ میں یہی خربوزہ جو ہے وہ 220 سے 230 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نقصانوں کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں شہریوں کو خریدنا پڑ رہے ہیں۔ پھلوں کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عوام جائے تو کہاں جائے؟ مفت آٹے کے حصول کے لیے عوام بدستور خوار ہونے لگے ہیں۔ انتظامیہ کے ناقص انتظامات کے باعث عوام گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہے۔ چائنا اسکیم ماڈل بازار میں آئے شہریوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ کہتے ہیں کئی دن سے چکر لگا رہے ہیں، آٹا نہیں دیا جا رہا۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک میں مفت آٹا دینے کا اعلان عوام کے لیے بن گیا کڑا امتحان۔ انتظامیہ کے ناقص انتظامات کے باعث شہری مفت آٹے کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ماڈل بازاروں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کو روزے کی حالت میں گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ انتظامیہ مختلف ہیلو بہانوں سے شہریوں کو آٹا دینے سے ٹال مٹول کرنے لگی ہے۔ شہری کہتے ہیں میسج کر کے آٹا لینے کے لیے آتے ہیں، گھنٹوں انتظار کے بعد انتظامیہ اگلے روز آنے کا کہہ دیتی ہے۔ کئی روز سے چکر لگا رہے ہیں، لیکن آٹا پھر بھی نہیں دیا جا رہا۔ مجھے تقریباً 6-7 دن ہو گئے آتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا میسیج نہیں آ رہا، نہ ہے لے گئے آپ۔ حکومت اس سے اچھا تو یہ جگہ جگہ پیسوں کا دے دے تو اس سے بہتر ہے جی، یہ تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ہی بار میں 3 تھیلے فراہم کر دے، لائنوں میں کھڑا کر کے کیوں خوار کیا جا رہا ہے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यह कहना है कि 29 मार्च से आटा पॉइंट्स पर एक थैला हासिल करने वाले ख़ानदान को बैक वक्त 20 किलो आटा दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल बाजार ठोकर न्याज बे का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुफ्त आटे की फराहमी के इंतजामात का जायज़ा लिया। मर्द व ख़वातीन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन न होने के हवाले से शिकायत की है। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत सुनी और मौके पर उनके हल के लिए हदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आटे के थैले का वज़न भी चेक किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि सेंटर्स पर इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। शहरियों को इज़्ज़त के साथ आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सेंटर्स पर बदनज़मी की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। सस्ती और कम निर्ख पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी अवाम के लिए दर्द सर बन गई है। इंतज़ामिया अशिया की तलब पूरी करने से कासिर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम निर्ख आटा ख़रीदना मुश्किल हो गया है। घी की भी किल्लत है। देखिए रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल में तब्दीली न आई। सस्ते की आस में यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कम निर्ख आटा, चीनी और घी के लिए अवाम की कतारें नजर आती हैं। घंटों लाइनों में लगकर भी अशिया जरूरिया नहीं मिलती। आटा अदम फराहमी की शिकायत आम हो गई। शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर भी मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद आटा और घी की तलाश में पहुंची, लेकिन खार हुई। सार्फिन को 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। आटे का थैला 400, घी 300 रुपए किलो और चीनी का रेट 70 रुपए किलो है। आम सारिफ के लिए आटे का थैला 648, घी 490 और चीनी 91 रुपए किलो है। अवाम कहते हैं कि शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सस्ते घी का हुसूल मुश्किल हो गया है। 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है, मुझे आटा नहीं मिल रहा। भाई कल लाना आज खत्म हो गया, कल लाना खत्म हो गया। आज सुबह आए थे, आप कहते कि है ही नहीं है। ये सूरत हाल तो हमें नहीं अच्छी लगी, इसलिए नहीं अच्छी लगी कि 3-4 मरतबा मैं चीज़ें लेके गई हूँ। इन्होंने यही कहा कि पर्चियाँ लेके आओ, आपको आटा मिलेगा। सानू आटा नहीं मिला। कभी कह रहे हैं 12 बजे आएगा, कोई कह रहा है 3 बजे आएगा। तो मेरी तो शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो आप ये फ्री दे रहे हैं, लोगों को लाइनें लगवाई हैं, उससे बेहतर है कि आप सस्ता कर दें। आटा और घी की अदम दस्तयाबी की शिकायत रमज़ान मुबारक से पहले ही मौजूद थी, जिनका अजाला करने में इंतजामिया मुसलसल नाकाम है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर भी महंगाई के वार जारी हैं। इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। खजूरें 500 रुपये से 32 रुपये किलो तक बिक रही हैं। तफसीलात देखिए। माह सयाम में भी महंगाई की दुहाई। इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 200 रुपए में मिलने वाली खजूरें 500 रुपए फी किलो तक मिलने लगी। मार्केट में 12 इकसाम की खजूरें 500 से 3200 रुपए फी किलो तक बिकने लगी हैं। जैदी खजूर 500 रुपए, चॉकलेट 800, कलमी खजूर 900 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईरानी खजूर 800, अजवा खजूर 2400, सऊदी कलमी खजूर 1800, सऊदी मबरून 2600 रुपए किलो मुकर्रर। सकरी 2400 रुपए, सक्कल खजूर 2800, मजदूर और अजवा ताविल 3200 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी खजूरों की कीमतें बढ़ने पर परेशान। कहते हैं इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूर भी महंगी हो गई है। दीगर ममालिक में त्योहारों पर चीजें सस्ती और पाकिस्तान में महंगी हो जाती हैं। खजूर पहले पिछले रमज़ान में बहुत सस्ती थी, लेकिन अब गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। तो क्या करें, अब हमने महंगी खरीदी है पिछले साल से, अब डबल रेट हो गया। कुछ बारिशें हो गई हैं, उनकी वजह से उन्होंने कस्टम बढ़ा दिया है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल करे, उनके लिए कोई सहूलतें फराहम करे, हर चीज़ सस्ते बाजार अपनी तरफ से लगाए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना इंतकामी फैसले और गवाहियाँ अवाम के सामने लाने का फैसला किया गया है। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में तमाम हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने की हिकमत अमली भी तैयार की गई है। मरियम नवाज ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखैल के फैसले को पार्टी बयानी की जीत करार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना इंतकामी फैसले और गवाहियां अवाम के सामने लाने का फैसला। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में तमाम हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। इजलास में इत्तफाक किया गया कि इमरान खान की करप्शन, बदउनवानियों और लूट मार के हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। किसी रियायत के बगैर सच कौम को बताया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखैल के फैसले
फैसले को पार्टी बयानिए की जीत करार दे दिया। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का माजी बन चुके हैं। इमरान खान अपने करप्शन मुकदमात से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। अगर इंसाफ है तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की जितनी शहादतें आ रही हैं, अभी तक तराजू के पलड़े बराबर हो जाने चाहिए थे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 4 साल में मईशत तबाह और अवाम गरीब हुए। 10 नंबरियों का सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि लूट मार करें। 4 साल में 1 करोड़ नौकरियों में से 1 नौकरी और 50 लाख घरों में से 1 घर अवाम को नहीं दिया। 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बजाय पाकिस्तान में करप्शन 14 दर्जे मजीद बढ़ गई थी। इजलास में मुस्लिम लीग नून के मुवक्कफ और उसके बयानिए का जायजा लिया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुल्की सियासत में दोबारा मुतहरिक होने का ऐलान किया गया है। ग्रुप के कुछ अरकान ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज़ भी दे दी है। पार्टी रहनुमाओं का यह कहना है कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन ग्रुप मुल्की सियासत के उफक पर फिर से मुतहरिक, आइंदा सियासी लाहे अमल के लिए सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन की सरबराही में ग्रुप की आला सतह मुशावरत, मुल्की सियासत में दोबारा फाल किरदार अदा करने का फैसला। ग्रुप के कुछ अरकान ने तहरीके इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज़ दे दी। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मुल्की सियासत में तरीन ग्रुप भरपूर किरदार अदा करेगा। कुछ शुरका का कहना था कि इमरान खान की पॉलिसियों ने पार्टी को तबाही से दो चार कर दिया। तरीन ग्रुप मुल्की सियासत पर नजर रखते हुए मजीद इजलास भी करेगा। तरीन ग्रुप के इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और दीगर शरीक हुए। जहांगीर तरीन ने ग्रुप के एजाज में इफ्तार डिनर भी दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे ने ग्रेटर इकबाल पार्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। PHA ने नुकसान के अजाले के लिए सदर PTI लाहौर को मुरासला भी लिख दिया है। जलसे के सबब 2,93,80,000 रुपए का नुकसान पहुंचा है। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर इकबाल पार्क में तहरीक इंसाफ का पावर शो, सियासी इज्तिमात से पार्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। PHA ने नुकसानात की तफसीलात हासिल कर ली। PTI इंतजामिया से नुकसान की रकम लेने का फैसला कर लिया गया। इंचार्ज हॉर्टिकल्चर जोन 1 ने सदर PTI लाहौर को मुरासला लिख दिया। मुरासले में PTI की क़यादत को नुकसान की रकम जमा करवाने की हिदायत की गई। मुरासले में कहा गया कि मीनार पाकिस्तान में PTI जलसे के सबब 2,93,80,000 रुपए का नुकसान पहुंचा। 21 मार्च 2022 को मीनार पाकिस्तान में PTI जलसे के दौरान 40,69,000 रुपए का नुकसान हुआ। PTI क़यादत ने माजी में होने वाले नुकसानात की रकम भी जमा नहीं करवाई। मुरासले के मुताबिक स्टील फेंस बाउंड्री वॉल 550 मुरब्बा फुट और मीनार का 275 मुरब्बा फुट जंगला टूटा। इलेक्ट्रिसिटी पोल, डस्टबिन, लकड़ी के बेंच भी जलसे के दौरान टूटे। साइन बोर्ड, मीनार के गिर्द LED लाइट्स पोल भी टूट गए। हाइड्रेंट, मुख्तलिफ मकामात पर 2,450 मुरब्बा फुट पत्थर भी टूटा। पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरे भी कारकुनों ने तोड़ दिए। CCTV केबल और MM कॉपर केबल को नुकसान पहुंचा। अब तक PTI ने मीनार पाकिस्तान में 6 मरतबा बड़े सियासी शो किए। हर बार पार्क की तनसीबात का नुकसान हुआ, मगर कभी इनके अजाले की रकम PHA को जमा नहीं करवाई गई। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी के लिए SP सिक्योरिटी से रुजू करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में इमरान खान ने सिक्योरिटी न देने के इकदाम को चैलेंज किया था। इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। सिक्योरिटी दरखास्त गुजार का आईनी हक है। अदालत से इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने और तमाम मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक के जरिए करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी के मामले पर SP सिक्योरिटी से रजू करने की हिदायत की। अदालत ने हुक्म दिया कि SP इमरान खान को सिक्योरिटी की फराहमी के मामले का जायजा लेकर कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए साबिक वज़ीर आज़म की पेशी के लिए मुतालिका अदालत में दरखास्त देने की हिदायत की। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से पुलिस सिक्योरिटी मिल चुकी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है तो इमरान खान दोबारा अदालत से रजू कर सकते हैं। अदालत ने इमरान खान की दरखास्त निपटा दी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। तोशा खाना का 1990 से 2001 का रिकॉर्ड पब्लिक करने का तफसीली फैसला जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहफ़ देने वाले ममालिक की तफसीलात भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आफसीम हफीज़ ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले में 1990 से 2001 तक तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म की नकुल मिलने के 7 रोज़ के अंदर 1990 से
मार्च 2023 तक तहाइफ देने वालों के नाम भी पब्लिक करे। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं और ना ही किसी को अपने फ़ायदे के लिए रियासत को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त है। तहाइफ को छुपाया या फिर उसकी कीमत अदा न करना गलती है जो खराबी को रग़बत देती है, लिहाजा तवक्को की जाती है जिन्होंने तहाइफ लिए वो रज़ाकाराना तौर पर उन्हें डिक्लेयर करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ फौजदारी एक्शन हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तकर्रुर के खिलाफ एक ही नौयत की 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद समेत दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इससे पहले अदालत ने दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुकम्मल इख्तियार है। निगरान वज़ीर आला का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्तों में इनकी तकर्रुरी को जानिबदार ना करार दिया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पहले रोज से सबको पता था कि मोहसिन नकवी वज़ीर आला होंगे। दरख्वास्तों में इत्तदा की गई कि निगरान वज़ीर आला के ओहदे पर मोहसिन नकवी का तकर्रुर कल अदम करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिया कि अगर फरीकैन तजवीज़ किए गए नामों में से किसी पर इत्तफाक कर लेते तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास ना जाता। अदालत ने दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान फाशिस्ट आदमी है, उसके कहने पर इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं हो सकते क्योंकि मरदमशुमारी हो रही है। सहूलतकार इमरान खान को इक़्तिदार में लाकर पछता रहे हैं। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो एक फाशिस्ट हैं। बच्चों के खिलौनों की तरह 2 असम्बलियाँ तोड़ी, कोई सो मोटो एक्शन नहीं हुआ। हमें सिसिलियन माफिया का लक़ब देने वाले हमसे नहीं कौम से माफ़ी मांगे। इलेक्शन मर्दमशुमारी के बगैर कैसे हो सकते हैं? किधर की है चोरी, मुझे बताइए। क्यों का चोर, क्यों का सिसिलियन माफिया? सिसिलियन माफिया आप खुद थे। मैंने उनको कहा था इनफरादी माफ़ी ना मांगे, पाकिस्तान की कौम से माफ़ी मांगे। मुझसे माफ़ी मांगे क्या फ़ायदा? मैं तो जो ख़राब होना था हो गया, जेल काटनी थी काट ली, जो तबाही मचानी थी मचा दी आपने। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान को लीडर के बजाय गीदड़ का लक़ब देते हुए कहा कि जब आपको हथकड़ियाँ लगती हैं तो कहते हैं पुलिस वाले कत्ल कर देंगे। हमारी जिंदगियों को खतरात लाहक नहीं हैं। गलती का एतराफ़ और माफ़ी करने से ही मसला हल होगा। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। हथकड़ियाँ जब इनको लगती हैं और जब चलें हथकड़ी तो लगती है, वो जो छिक्कू सा पहना हुआ है लोहे का, उन्हीं पुलिस वालों पे शक करता है मुझे पुलिस वाले मार देंगे। खुदा ना खास्ता पुलिस वाले पागल हैं, मार देंगे यार। पुलिस वालों को तुमने समझा क्या हुआ भाई? वो कानून के मुहाफिज हैं, वही पुलिस वाले आपकी हिफाजत करते हैं। कोई लीडर मुझे बताएं पाकिस्तान का, ये अकेला वज़ीर आज़म तो नहीं रहा। विफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि ईद उल फितर पर अवाम एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस समेत दीगर स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। रेलवे फ्रीट के किरायों में 10 से 15% कमी कर रहा है। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं ब्रायलर गोश्त की। तो ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आई है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता हुआ, फ़ी किलो कीमत 470 रुपये किलो कर दी गई है। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कमी आई है। अंडे 5 रुपये महंगे हुए, फ़ी दर्जन कीमत 252 रुपये हो गई है। मज़ीद जानते नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमतों में जो है अब इस्तेहकाम आने लगा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल कम हो रही हैं और आज भी 12 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 470 रुपये मुकर्रर की गई है। और इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 8 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 305 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 313 रुपये मुकर्रर की गई है। ताहम दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा और अंडे आज 5 रुपये फ़ी दर्जन तक महंगे किए गए। 247 से कीमत बढ़ाकर 252 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दी गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,440 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि फ़ी अंडा शहरियों को 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। रमजान मुबारक के 6 दिनों में अंडे जो है 15 रुपये फ़ी दर्जन तक महंगे हो चुके हैं और इस हवाले से जो एग ट्रेडर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है गैर मामूली तौर पर कम कर दी गई है, जिसकी वजह से मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर ये सप्लाई इसी तरह रही तो अंडों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई के जेल बरो तहरीक के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस की गाड़ी पर हमले का केस है। जुबैर खान नियाजी की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत में 4 अप्रैल तक तोसी की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुबैर खान नियाजी के वकला को बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया है।
PTI की जेल भरो तहरीक के दौरान तोड़ फोड़ और पुलिस की गाड़ी पर हमले का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने समात की। जुबैर खान नियाजी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। सरकारी वकील ने बताया कि तफ्तीश के लिए नई JIT बन चुकी है। अदालत ने इस्तफसार किया, कहाँ है JIT? अभी तो JIT बनी ही नहीं और क्या ये शामिल तफ्तीश हो चुके हैं? तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अदालत ने जुबैर खान नियाजी की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने जुबैर खान नियाजी के वकला को बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया। पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। जुबैर खान नियाजी और इबाद फारूक के खिलाफ थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। शरीक मुलजिम इबाद फारूक की बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत मंजूर हो चुकी है। ज़िले शाह कत्ल पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने हसान नियाजी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अदालत ने कराची में दर्ज मुकदमात में हसान नियाजी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। ज़िले शाह कत्ल पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ केस। हसान नियाजी को राहदारी रिमांड पर कोयटा से लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। हसान नियाजी ज़िले शाह कत्ल पर हंगामा आराई के मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसान नियाजी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है, लैपटॉप और मोबाइल बरामद करना है। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक जो हंगामा आराई हुई वो हसान नियाजी की इमा पर हुई, लिहाजा हसान नियाजी से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। हसान नियाजी के वकील राना इंतजार ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। वकील ने निशानदेही की कि FIR बदनीयती पर मबनी है, मुकदमा सिर्फ इंतकामी बुनियादों पर दर्ज किया गया। वकील राना इंतजार ने कहा कि हसान नियाजी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो ILF का मुतहरिक रुकन है। FIR किस्से कहानी की बुनियाद पर काटी गई कोई ठोस वजह नहीं। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और हसान नियाजी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद भी अदालत पहुंची और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हसान नियाजी से जो सलूक हो रहा है वो काबिल मज़म्मत है। आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। हसान नियाजी साहब यहाँ आए, उनका इस वक्त जुडिशल रिमांड हुआ तो पता चला कि जी कराची के अंदर एक FIR दर्ज हो के और कराची की पुलिस इस वक्त आ गई है उनको लेने के लिए। ये क्या तमाशा इन्होंने बना रखा है, कानून का तमाशा बना रखा है। इन्होंने आइन की धज्जियाँ उधेड़ दी, इन्होंने हर किस्म की वो गलत हरकत कर रहे हैं जो कानून के मुखालिफ हैं। दूसरी जानिब पुलिस कराची में दर्ज मुकदमात में हसान नियाजी के राहदारी रिमांड के लिए इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहुंच गई। अदालत ने हसान नियाजी का 2 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार पर मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्ज़ाम है। उस्मान डार और उनके भाइयों ने अपने असासजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात महकमा एंटी करप्शन को जमा करवा दी है। PTI रहनुमा उस्मान डार पर मनपसंद अफराद को ठेके देने का मामला उस्मान डार और उनके भाई लाहौर में एंटी करप्शन टीम के सामने पेश हुआ है। PTI रहनुमा उस्मान डार और उनके भाइयों ने अपने असासों की तफसीलात जमा करवा दी। बैंक अकाउंट्स और FPR गोशवारों की तफसीलात भी एंटी करप्शन को दे दी। PTI रहनुमा उस्मान डार पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, MCL और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्ज़ाम है। उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार ने प्रोजेक्ट्स बगैर नक्शा मंजूरी के ठेके पर दिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के SDO जहांगीर बट को गिरफ्तार किया जा चुका है। SDO ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 5 लाख रुपए के एवज मेरी ट्रांसफ़र रुकवाई गई। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक एक ठेकेदार ने आमिर डार की बेटी की शादी के तमाम अखराजात उठाए। SDO पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जहांगीर बट के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और उनके भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। अच्छी खबर यह है कि मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में तलबा और सीनियर सिटीज़न को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी का हुक्मनामा जारी। निगरान हुकूमत ने पहले ऐलान किया, फिर हुक्मनामा वापस ले लिया। लाहौर न्यूज़ ने मामला उठाया तो निगरान हुकूमत को सूरत हाल का इदराक हुआ। मास ट्रांजिट सिस्टम में तलबा और सीनियर सिटीज़न को मुफ्त सफरी सहूलियात शुरू कर दी गई हैं। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में तलबा और सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी। ऐलान के बावजूद निगरान हुकूमत तजब्जुब का शिकार रही। पंजाब काबीना के इजलास में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तलबा को मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 26 मार्च को तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी का हुक्मनामा जारी किया। एक ही रोज बाद हुक्मनामा वापस ले लिया। स्कूल और कॉलेज के तलबा को मुफ्त सफरी सहूलत के नोटिस आवेजा किए गए। एक रोज बाद मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से नोटिस उतार दिए गए।
लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो निगरान हुकूमत को सूरत हाल का इदराक हुआ। मैस ट्रांजिट सिस्टम में तलबा और सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलियात शुरू कर दी गई। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। मुफ्त सफरी सहूलियात के लिए तलबा का स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म में होना लाजिम करार दे दिया गया। बगैर यूनिफॉर्म के तलबा को मुकम्मल किराया अदा करना होगा। तलबा के पास कॉलेज का कार्ड होना भी जरूरी। तलबा को ये सहूलत मौसम गर्मा की तातील तक मुयसर आएगी। बुजुर्ग शहरियों के कानून के तहत सीनियर सिटीजन भी मुफ्त सफर करेंगे। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी इंतजामिया का कहना है कि काबीना के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मुफ्त सफरी सहूलत दे दी गई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। प्रॉपर्टी और टोकन टैक्स की वसूली के लिए आसान हदफ। महकमा एक्साइज ने बरतानवी कंपनी की मदद से ऐप्स तैयार कर ली हैं। तकरीब में सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पंजाब में टोकन और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली अब होगी आसान। महकमा एक्साइज और बरतानवी तंजीम सब नेशनल गवर्नेंस SNG के ताउन से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई। एप्स लॉन्चिंग तकरीब फ्लैटिस होटल में मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खसूसी थे निगरान सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल अफजल, सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार, DG एक्साइज मोहम्मद अली और दीगर अफसरान के अलावा मेहमान तंजीम की डेवलपमेंट डायरेक्टर मिस जो मोयर और सूबाई टीम लीडर उस्मान चौधरी भी तकरीब में शरीक थे। DG एक्साइज मोहम्मद अली ने SNG के साथ MOU पर दस्तखत किए। सूबाई वजीर बिलाल अफजल ने SNG लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डिजिटल ऐप से टैक्स की वसूली बेहतर होगी, शहरियों की इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होगी। तकरीब के अख्ताम पर सूबाई वजीर ने सर्टिफिकेट, शील्ड्स और डिवाइसेस तकसीम की। लोहे और स्टील से जुड़े मिल्स की 3 एसोसिएशन के अहदेदारान महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अहदेदारों का यह कहना है कि आलूदगी फैलाने वालों की आड़ में हमें भी रगड़ा जा रहा है। ऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन, पाकिस्तान स्मॉल स्टील री रोलिंग मिल्स एसोसिएशन और रावी इंडस्ट्रियल ओनर्स एसोसिएशन के अहदेदार सरापा एहतजाज। मिल्स मालिकान ने नारेबाजी भी की। हमें जीने का हक दो, हमें जीने का हक दो। इस मौका पर चेयरमैन स्मॉल स्टील मिल्स चौधरी शेर गुज्जर और सदर पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड ट्रेडर्स मलिक तैयब महमूद ने कहा, कानून के तहत काम करने वाली मिल्स के मालिकान को बेजा तंग न किया जाए। हम कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कोयला और दीगर मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे के जो चंद अफसरान हैं उनको कोई गलत सिमत पे ले जा रहा है कि ये लोग सारे कार्बन इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि ये सारे लोग कार्बन इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, ये कोयला इस्तेमाल करने वाले हैं और ये महकमा माहौलियात के साथ पहले दिन से इनके साथ करें हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो इनको मिसगाइड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है एसोसिएशन की भी, मेरी भी और लाहौर चैम्बर की भी कि प्लीज़ हमारे जो सादा लोग हैं या मिलों वाले जो हैं इनके साथ सख्ती बरतना बंद करें। एसोसिएशन से जुड़े दीगर अहदेदारों का कहना था, आलूदगी का बायस बनने वाली मिल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, लेकिन मुश्किलात ना खड़ी की जाएं। आलूदगी कौन चाहता है फैले? हम भी इसी फ़ज़ा में सांस लेते हैं, हमारी नस्ल भी इसी फ़ज़ा में अपना पल बढ़ रही है, इसके तो कोई खिलाफ नहीं है। कार्बन जो इस्तेमाल करें उनकी तो हम यहाँ पे मुकदमा उनका लड़ना ही नहीं है, हम तो उन लोगों के जो फेयर काम कर रहे हैं। अहदेदारों ने कहा, कार्बन बनाने और जलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में महकमा माहौलियात और दीगर इदारों के साथ खड़े होंगे। शहर में सीवरेज मसाइल का खात्मा न हो सका। बादामी बाग का इलाका करीम नगर सीवरेज मसाइल से दो चार है। गटर उबलने लगे हैं। गंदे पानी की वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। बादामी बाग का इलाका करम नगर गली नंबर 2 के रिहायशी सेवरेज मसाइल से दो चार। सेवरेज लाइन बैठ जाने से बंद हो गई, गटर उबलने लगे। गंदे पानी की वजह से मकीन सरापा एहतजाज बन गए। पीने के पानी में भी गंदा पानी शामिल होने लगा। ताफुन से बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वासा हुकाम को कई बार सूरत हाल से आगाह किया, मगर मसला हल न हुआ। इस इलाके के मसले मसाइल काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। गली नंबर 2 में तकरीबन 1 माह से ये मसला दरपेश है। 1-2 दिन गली साफ़ रहती है, बकाया गटर की प्रॉब्लम ही है, बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहे हैं। अब देख लो साढ़े इलाके का ना तो सीवरेज का निज़ाम बेहतर है तो ना ही साफ पानी का नलके के पानी के विचों बो आती है, तो जो इधर ध्यान मारो तो नमाजियों के लंघन का रास्ता नहीं है। गली का बुरा हाल है, खस्ता हाली का शिकार है। उसके अलावा जो हमारी सीवरेज की लाइनें हैं वो भी टोटली बैठ चुकी हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वासा अमले की जानिब से गटरों के पानी की निकासी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। खस्ता हाल सीवरेज लाइन की वजह से आए रोज गंदा पानी जमा हो जाता है। कैमरामैन हुनूक अकबर के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़।
यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। मियां आज़मी इकबाल और ज़ुबैर खान नियाज़ी अबूरी ज़मानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँच गए हैं। दोनों ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में तोड़फोड़ करने, कार्य सरकार में मुदाखलत करने और पुलिस गाड़ी को नहर में फेंकने का ये मुकदमा है जो कि थाना शादमान में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, ज़ुबैर खान नियाज़ी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पहुंच चुके हैं, जबकि इनके वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर भी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान इनकी अबूरी जमानतों पर जो है वो समाअत कर रही हैं, जबकि मुल्ज़मान की जानब से जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट जो थी उस हवाले से तफ्तीशी अफसर को अदालत ने तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया नुमान नूर आपका। क्राइम की दुनिया से खबर यह है कि समनाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ जराए में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जाली चेक, असलाह की नुमाइश और मुनशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब भी थे। पुलिस ने असलाह और मुनशियात बरामद करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइएगा 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, समनाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मफरूर इश्तिहारी शौक, वेपन, मंशियात को समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए मालिक के जाली चेक मुकदमे में मतलूब मफरूर मुलजिम सज्जाद को गिरफ्तार किया। मफरूर मुलजिम सज्जाद लिफ्टन रोड पुलिस को भी मतलूब था। शौक, वेपन, नाजायज असले का मुर्तकिब मुलजिम अली लतीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अली लतीफ के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। मंशियात फरोश मुलजिम इफ्तिखार और गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम इफ्तिखार के कब्जे से आधा किलोग्राम से ज्यादा जो है मंशियात बरामद हुई है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद को खराज अकीदत। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में अमजद इस्लाम अमजद की शायरी को मुजस्मों की शक्ल में ढाल कर पेश किया गया। नामर शुअरा की महफिल भी सजाई गई। मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद को शानदार अंदाज में खराज अकीदत। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम किया गया। 4 PhD स्कॉलर्स ने अमजद इस्लाम अमजद की शायरी को मुजस्मों में ढालकर पेश किया। नुमाइश का एहतमाम पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर ऑफ क्रिएटिव आर्ट ने किया। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मरहूम की नज़म सेल्फ मेड लोगों का अलमिया को अहमद फराज ने मुजस्सिम बना दिया। हाज़रीन ने अमजद इस्लाम अमजद की शायरी पर मबनी फनपारों को खूब सराहा। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने कहा कि PhD स्कॉलर्स ने अछूते अंदाज में शायरी को नई शक्ल दी है। जिस तरीके से इस आर्ट को ट्रांसलेट किया गया है उसको देखकर बड़ा गहरा एहसास हुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट मौजूद हैं जो शायरी को भी एक नया रुख दे देते हैं और अपने आर्ट के ज़रिए उसको ट्रांसलेट करते हैं। PhD स्कॉलर्स का कहना था कि ये नुमाइश अमजद इस्लाम अमजद को खराज अकीदत पेश करने की एक काविश है। अकीदे किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ हायल होते हैं, तो उनकी जो नज़म थी वो यही थी कि अकीदों की चादर ठीक है आपने ओढ़नी है लेकिन टेक्नोलॉजी में हायल ना हो। वो उनकी शायरी के अंदर हमें होप, पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन और एक हैप्पीनेस जो है ना वो नज़र आती है, जिस बेस के ऊपर मैंने ये अपना मुजस्समा डेवलप किया है। हमने यहाँ पे अमजद साहब की शायरी को ना सिर्फ खराज तहसीन पेश किया है बल्कि आम लोगों तक उनकी शायरी और एक तख्लीक का आर्ट का जो है कनेक्शन उस पे एक जिक्र किया। शायर अब्बास ताबिश, ताहिर शहीर, शाहनवाज जैदी और दीगर भी नुमाइश में पहुंचे। नुमाइश में अदाकार नूरुल हसन, डॉक्टर ज़ियाउल हसन, शौकत फहमी, कामरान आबिद, डॉक्टर अमारा, हबीब आलम, डॉक्टर समीना और दीगर भी मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से इस्लामी फ़न ख़ताती का एक बाब लाहौर में वाह हुआ। खाना फ़रंग ईरान में होने वाली नुमाइश में नौजवान आर्टिस्टों ने ख़त कोफ़ी से लेकर जदीद मुसव्वराना ख़ताती तक मुख्तलिफ मराहल को तजदीदी इर्तिक़ा की शक्ल में पेश किया है। ख़त नस्ख़, ख़त दीवाने, ख़त मुहक्किक और फिर सबसे बढ़कर इस्लामी फ़न ख़ताती का मकबूल तरीन ख़त कोफ़ी। गोया खाना फ़रहंग ईरान में होने वाली नुमाइश अपने अंदर इस्लामी फ़न ख़ताती के बेशुमार अंदाज समोए हुए थी। इन फनपारों को बनाने वाले तो नौजवान थे लेकिन पुख्तगी उस्तादों की सी नज़र आ रही थी। उनमें जो ज़ौक़ व शौक़ नज़र आता है वो उनकी उम्र से भी ज़्यादा है।
ہمارے حساب سے روحانیت ان میں اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ انہوں نے اس کام کو اتنے شوق سے کیا اور نہایت خوبصورت انداز میں کیا، جو بڑے بڑے فنکار بھی شاید نہ کر سکتے ہوں۔ اسلامی فن خطاطی کے تمام رنگ اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک بہت ہی دلکش رنگ یہ بھی ہے کہ اس نے اسلامی ممالک میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کو آپس میں جوڑنے کا کام بہت خوب کیا ہے۔ یہ اس فن کی مقبولیت ہی ہے کہ آج اسلامک خطاطی میں نت نئے تجربات ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم لکھتے بھی قرآن مجید ہے، تو اسی مناسبت سے ہم لوگ پھر یہ ایگزیبیشن جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ جو کلرز ہیں ان کو گلیکسیز سے کلر سے پریزنٹ کر کے شب قدر کے اندر جو ہم رات ہے اس کو رمضان المبارک کے حوالے سے پریزنٹ کیا ہے اس کے اندر۔ جب پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو روحانیت ہوتی ہے وہ ایکسٹرا ایکسٹریم قسم کی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک رمضان میں خطاطی کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ رمضان المبارک کی مناسبت سے اس کاوش کو شاندار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلامک کیلی گرافی بھی فن خطاطی کا کیا شاندار اسلوب ہے جو آج اپنے فن کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور شاندار بات یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان آرٹسٹ اس فن کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ کیمرامین حنوک اکبر کے ساتھ سہیل قیصر، لاہور نیوز۔ خبر شامل کر لیتے ہیں عالمی وبا کے حوالے سے۔ کورونا کا خوف برقرار ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق شہر میں وائرس پھیلنے کی مثبت شرح 7% تک پہنچ گئی ہے۔ صوبے میں مثبت شرح 1.7% ہے۔ ڈاکٹرز نے ایک مرتبہ پھر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ برقرار۔ محکمہ صحت کے مطابق شہر میں کورونا وائرس پھیلنے کی مثبت شرح 7% تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں اس وقت مجموعی طور پر شرح 1.7% ہے۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں کورونا کا کوئی تشویشناک حالت کا مریض زیر علاج نہیں ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق بیمار افراد اور بچوں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ چھوٹے بڑے سب کو ایک مرتبہ پھر ماسک سمیت دیگر کورونا SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ طبی ماہرین کے مطابق عوام ماسک کے استعمال کو ترک کر چکے ہیں، تاہم رش والے مقامات پر ماسک کا استعمال ایک مرتبہ پھر شروع کر دینا چاہیے۔ موسم کی خنک مزاجی برقرار ہے۔ 28 سے 31 مارچ کے دوران پھر سے بارش کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ مغربی ہوائیں منگل کو ملک میں داخل ہوں گی۔ 28 سے 31 مارچ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کے باعث PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ PDMA ترجمان کے مطابق مغربی ہوائیں منگل کو ملک میں داخل ہوں گی۔